Now, viewers, just imagine living in a place for 50 years and then suddenly being told one day that your land is not your property anymore. The claimant has no evidence to substantiate his claims, and yet you are given a 30-day notice to vacate your house. This is exactly what is playing out in Bihar, just 20 minutes from the capital Patna. An entire village is living in the fear of losing their ancestral property. And the land grabber in this case is India's third largest landholder. No prizes for guessing. The Waqf Board. In Fatuha, which is approximately 30 kilometers from Patna, residents of Govindpur village are scared that their land will be taken away by the Waqf Board. Out of nowhere, a few days ago, a notice of the Bihar Sunni Waqf Board claimed that around 10,000 square feet of the village land belonged to them. Subsequently, a notice to vacate the land in 30 days was issued by the administration. The aggrieved were forced to approach Patna High Court. When the court demanded evidence of land ownership and donation, the board could not provide any to satisfy the court. Since the Waqf Board presented no valid evidence, the court ruled in favor of the residents and the 30-day notice has now been withdrawn. However, the sword still hangs on the head of the villagers. हम रह रहे हैं यहाँ 50 साल से ही हमारे ससुर का जमीन खरीद गया है और बबलू मियाँ हैं जो हमको नोटिस दिए हैं, घर से बेघर कर दिए हैं। आपका नाम क्या है? रामलाल साहब। रामलाल जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 50 वर्ष से रह रहे हैं। और इससे पहले? इसके पहले मैंने गांव में रहते थे, यहाँ खरीद के लिए हैं। ये ज़मीन जो है हम लोग खरीदे हैं, जिनके खतियानी ज़मीन है वह 1908 का सर्वे में उनके नाम है, उनके वंशज से खरीदे हैं। मेरे पास खतियाँ कोई कागज़ है तो जाइए अपना ऐसी टाइटल लड़िए, तो उसके पास कागजात है नहीं। अब बोर्ड अभी तक नहीं हटा रहा है, तो मैंने लोगों को शंका रहा है कि क्या करेगा ये जमीन हम लोग सही सरकारी जमीन पड़ा हुआ था। कहते ही कि हम लोग को भर दिया गया, हर वक्त टॉर्चर दिया जाता था। अब हम लोग को कुछ सुधार मतलब हुआ, हम लोग उसके से हट गए। हम लोग से पैसा लिया जाता था, वही बबलू ले देता, लेकिन अब हम लोग जब पैसा देना छोड़ दिए तो हम लोग को 3 नोटिस आया। हम लोग 90%, ये लोग 5% हो गए, 95% हम लोग हैं। लेकिन फिर भी लोग से पूछिए कि हम लोग कभी कोई तंग किए हैं? नहीं। ये रास्ता का झगड़ा हुआ और कोई बात नहीं, मेन झगड़ा रास्ता का ही था। रास्ते पे विवाद हुआ. The Waqf is saying the village is ours. What is it that made Bihar Waqf Board believe that they could get away with this brazen attempt to snatch away land rightfully belonging to someone else? It is the same Waqf law that is currently being debated by a joint parliamentary committee, the amendments to which ensure that such a thing does not happen. If you want to know the impunity that it gives the Waqf Board, listen into the Bihar Waqf Board chairman. ये मुगलिया दौर से वो ज़मीन वक्फ है और वन से वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। आज सरकार उस पर कोई भी पर्चा काट दे या किसी को बसा दे, वो आज की ज़मीन नहीं है। आज सैकड़ों साल पहले से वो वक्फ है, वो आज भी है। उसमें मज़ार है, कब्रिस्तान है, उसको इंक्रोच कर रखा है। इंक्रोचमेंट हटाने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। आप क्लेम कर रहे हैं सिर्फ मुजबानी या आपके पास भी कुछ पेपर्स है? एकदम पेपर है। कौन पेपर चाहिए आपके पास? खतियान चाहिए? क्या चाहिए? मेरा यहाँ का काम है देख रेख करना कि कोई ज़मीन पर कोई इसी तरह का ही नहीं हो, कोई कब्जा नहीं करे, ये नहीं करे। ये मेरा काम ये ना है। पेपर तो सारी वक्फ बोर्ड में है और पेपर मेरे पास भी है। Let's open this up. Shazia Ilmi stays on. Karan Verma also with us. Advocate Adil Hassan, national spokesperson of the AIMIM. Professor Anwar Pasha, national spokesperson of the RJD. Advocate Tala Rashidi, spokesperson of the Rashtriya Ulema Council. And Lokesh Jindal stays on. Adil Hassan, what is this model once a waqf, always a waqf? ये क्या है भाई फॉर्मूला? बता दीजिए देश को। ये तो है कि जब जो मर्जी आप उसी को बोलेंगे ये वक्फ हमारा, ये वक्फ बोर्ड का लैंड है। इसीलिए शायद हाई कोर्ट ने कहा था। मेरा सीधा सा सवाल है भाई साहब, आप ताजमहल भी ले लो, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? प्रणय भाई, वन से वफ ऑलवेज ए वफ, ये आदिल हसन या वफ बोर्ड की जुबानी नहीं है, देश के सर्वोच्च न्यायालय का जुबान है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें दिया गया। और मैं आपको बतला दूं, जो आप वफ वफ जो मिस इंटरप्रेट होता है मीडिया के सामने,
चाहे वो हिंदू का विलेज हो, चाहे मुसलमान का विलेज हो, चाहे किसी भी का विलेज हो। मेरी प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी के बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उसने अल्लाह के नाम पर उसने दान किया, दिया लोगों को एक मकसद के लिए, और वो उसने डोनेट किया है कि इस मकसद के लिए होता है। उसका जो वक्फ बोर्ड का सीईओ होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, उसके पूरे स्टाफ जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, और जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वही रजिस्ट्रेशन में मदद करता है, क्लैरिफिकेशन देता है। तब मैं पटना का, क्योंकि मैं बिहार से आता हूं, फतुआ और नालंदा में सोगरा वक्फ स्टेट जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वक्फ स्टेट में हजारों एकड़ जमीन है, जो जहां पे नीतीश जी का गृह जिला नालंदा में उस पूरा इंक्रोच्ड है। उसी तरह जब आजाद पार्टीशन हुआ था तो बहुत लोग दूसरे मुल्क चले गए, जो नहीं गए, जो उनके रिश्तेदार गए। आज बिहार सरकार रेवेन्यू को फिर से करवा रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट फिर से सर्वे कर रहा है, तो सब लोग अपने अपने जमीन का खतियान डॉक्यूमेंट निकाल रहा है, और वो जो वक्फ की जमीन निकल रही है तो वक्फ बोर्ड के पास लोग अप्रोच कर रहे हैं। और मैं बता देता हूं आदिल गवर्नमेंट हसन, देखिए आप काफी अच्छा बोलते हैं आदिल भाई, लेकिन इसमें दिक्कत ये है, आपने जो बोला ये वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, इसको जस्टिफाइड कर। इस केस में दिक्कत ये, केस बाय केस चलते हैं, आपके लिए भी आसानी होगी, जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। जब कोर्ट ने पूछा कि भाई साहब कहां है सबूत, तो उन्होंने एक फॉर्म तो दिया, लेकिन किसने, आप जो कह रहे थे अल्लाह के नाम पे दिया है, वो बता नहीं पाए कि किसने दिया है। सर आपको बता, मैं भी बना लेता हूं, एक कॉलम यहां बना लेता हूं, और आप कहां रहते हैं, पटना में रहते हैं आदिल भाई? जी सर, जी सर। मैं कल वक्फ बोर्ड मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे कि ये जो आपका घर है ये मेरा है। जी। अब आप कोर्ट कचहरी घूमते रहिए। मैं आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड, यही वक्फ बोर्ड की लापरवाही है, इसी की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब ने असेंबली के बाहर की इंक्रोचमेंट है। ये वक्फ बोर्ड के वकील और वक्फ बोर्ड का कुछ ऑफिशियल वो मिला रहता है इंक्रोचर से, उसके वो इंक्रोचर से मिलके वो जो डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद जमा करना पड़ता है वो नहीं देते हैं। जो ट्रिब्यूनल होता है उसमें ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन होता है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। मुझे आदिल भाई एक बात बताइए, अगर आप ये मानते हैं कि अंदर साठगांठ होती है और इसमें करप्शन है, तो ये भी तो होता होगा ना कि मिल के ये दूसरों की जमीन हथिया लेते हैं। प्रणय भाई आपको बता दूं, आप सीनियर एडिटर हैं, वक्फ की जो जमीन जो रजिस्टर्ड होती है वक्फ बोर्ड में, उसका जो सीईओ होता है, जो सर्किल ऑफिसर जो ब्लॉक पे होता है, उसके बाद एलआरडीसी होता है जो सब डिवीजन में होता है, सब ठीक है, उसके पास जो भी हो, लेकिन अभी तो उसके पास ऐसा पावर है कि जो मुझे नहीं लगता दुनिया में और किसी के पास है। जिस पे नजर गई वही वक्फ बोर्ड हो गया। करण ये प्रणय भाई, देखिए प्रणेश, अब मैं बोल लूं, आदिल जी मैं बोल लूं, एक मिनट। और एक चीज नहीं देखिए, आप करण को बोलने दीजिए, समय तो वक्फ बोर्ड का नहीं है, समय हमारा शो का समय, उनको बोलने दीजिए। आदिल भाई इनका कब्जा करते समय का भी कब्जा करना चाह रहे हैं। 20 सेकंड देखिए, अच्छा चलिए बोलने दीजिए। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं वो 2005 से नीतीश जी बनाए हुए हैं। अरे सब ठीक है, लेकिन अगर कोई कब्जा कर रहे हो तो प्रॉपर्टी के पेपर्स भी तो दे दो। देखिए इस केस में क्या हुआ, अब मैं बता रहा हूं, शाहजहां की डॉटर इन लॉ जो एक वो मकबरा था वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वक्फ बोर्ड पहुंच गया, बोला हमारा है। कोर्ट ने जब पूछा तो उनके पास कुछ नहीं था, तो ये इसमें सीईओ क्या करेगा? इसी कोर्ट में आप जो बोल रहे हैं ना कि ये कब्जा कर लेते हैं, ये भाई हम लोग नहीं बोल रहे, ये के रहमान खान ने कहा है 9th JPC 2006 में, इन्हीं के लोगों ने कहा है, के रहमान खान ने। और तो और सच्चर कमिटी, इट वाज सच्चर कमिटी हु सेड कि भाई वक्फ नीड्स अमेंडमेंट्स, इट नीड्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इट इज लैंड ग्रैबिंग इज हैपनिंग इन वक्फ। ये सच्चर कमिटी कहता है, 9th JPC कहता है, आप तब भी नहीं मानते आदिल जी। अब तो आपके जमात के लोग ये बात कह रहे हैं। ताला रशीदी, ये जो पटना में हो रहा है ये पहले तमिलनाडु में हुआ, महाराष्ट्र के कुछ गांव में हुआ। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स है वो जाते हैं, उनको जो प्रॉपर्टी पसंद आ गया वो बोलते हैं ये वक्फ का है, वक्फ हमारा है। ये क्या चल रहा है सर? प्रणेश जी, जितना आप इसको जनरलाइज, स्वीपिंग जनरलाइजेशन जो आप कह रहे हैं, वो साफ दिखा रहे हैं कि आप एक पूर्वाग्रह प्रेजुडिस से ग्रसित हैं। इसे इस्लामोफोबिया भी कहा जा सकता है। हाँ, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। सुनिए, आप इसको, अरे आप बोल लेने दीजिए। अगर बुलाया है सुनने के लिए तो सुनने का भी तो थोड़ा सा मादा रखिए। बोलिए सर, रहेंगे आप तो सर, आप मोनोलॉग तो है नहीं, ये बोलने दीजिए सर। आप वक्फ ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक कानून है, वक्फ बोर्ड है, सेंट्रल वक्फ एडवाइजरी कमेटी है, पूरा एक सेटअप है। अगर भारत के कानून में आप विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, तो आपको इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप देश की लोकसभा से बने हुए कानून का मजाक उड़ा रहे हैं।
ये खुद ही अपने आप में हास्य बात है कि एक नेशनल एंकर जो एक सीनियर एडिटर है वो मजाक उड़ा रहा है कानून का जो स्टैब्लिश बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। मैं तो बोल रहा हूं ये अनजस्ट है, जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ये अनजस्ट कानून है, ये जाना चाहिए। डे लाइट रॉबरी है। अब आप ये लीजिए, डे लाइट रॉबरी है, ये डे लाइट रॉबरी अस्तित्व में है ना। सुनिए, उसके बाद दूसरी बात जो आपने कहा, जिस गांव का वहां पे मजार है, वहां पूरी मजार की जमीन है, वक्फ ने एक बात उठाई, उसने ऑब्जेक्शन किया कि इंक्रोचमेंट हुआ है। आप बुलडोजर को, आप लोग प्रो बुलडोजर हैं, आप दिन रात कहते हैं कि सरकारी जमीन पे हड़पे हुए लोग बुलडोजर चल रहा है, बहुत अच्छा बुलडोजर राज किया। सोमनाथ मंदिर पे भी क्लेम कर रखा है वक्फ ने। अपने इंक्रोचमेंट आप सोचिए जरा, चाहता है वक्फ बोर्ड, तो आपको दिक्कत होती है। इस्लाम 1400 साल पुराना है प्रणेश, पर 1500 साल पुराने मंदिर पे तमिलनाडु में इनका क्लेम है। दिक्कत है, मतलब आप सोचिए जरा, इस्लाम से पहले का जो मंदिर है उस पे भी इनका क्लेम है वक्फ का। कागज ना दिखाएंगे, कागज ना मानेंगे, कह रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी और आप कुछ बोलोगे तो इस्लामोफोबिया। नहीं, इस्लामोफोबिया है। इनको लगा कि इस्लामोफोबिया बोल देंगे तो एंकर थोड़ा बैकफुट पे आ जाएगा कि आप ये एंकर है, वो एंकर है, कैसे बोल रहे हैं। मैंने बोला डे लाइट रॉबरी है। ताला रशीदी, डिड यू हियर दैट? दिस इज डे लाइट रॉबरी। दिस लॉ 1 मिनट सर, दिस लॉ deserves to go. Yes. And people who are backing it must be named and shamed. Let's bring in Mr. Professor Pasha. Professor Pasha, forget the Waqf for a moment. Just on a matter of principles, legality, sir, or logic. Is this fair? You've heard the villagers. They are not members of any political party. वो बोल रहे हैं 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास कागज है, लेकिन बबलू मियाँ आते हैं, वो कहते हैं कि खाली करो, ये वक्फ की जमीन है। Pranesh ji, I think it needs a clarification. Waqf is not a private body. It is not managed by a private body. It's a government body. It's a constitutional body. It is under the Ministry of Minority Affairs. And all the officers are appointed by the government, central governments and state governments. So don't say that this is a land grabbing organization. You don't say this. Don't diminish this organization. The land is not given by the government, or it is not encroached by Waqf board. Lands are donated to Waqf board. You are saying just opposite. You are saying that the Waqf board grabs the lands of other people. No, the Sachar committee said that the Waqf board's lands are being grabbed by the people. Professor Even Pasha, by the government. but sir, I just have one question. Many organizations have grabbed the lands sir, of Waqf do board. I have the? Can I ever have the power? Please Professor let Pasha, me- just 1 at minute, least sir. give me 30 seconds. I just give want to me- ask one simple give me- question, sir. Please. Please give I will me keep some- quiet. I will allow you to answer this. I just want to ask you one simple question. You can call the question silly or the person asking it silly. Yeah. Can I have the power to donate your bank balance to myself? कि मैं लिख दूं आपके जो संपत्ति है मेरे पास है कि वो आप देंगे या मैं खुद ले लूं? I think, it may happen in Jungle Raj, in Modi Raj, it may happen. It may happen. The way bulldozers are bulldozing the houses of minority communities, it may happen. If you believe in such law, it may happen. But show me one example where the Waqf has captured the land of anybody. This is एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देखिए, गोविंदपुर मैं पढ़ता हूं एग्जाम्पल सुनिए। प्रोफेसर साहब, let me please you have asked question, Okay, listen sir. my answer, then you will ask the question, Okay, sir. then you will ask the counter question. First listen my answer. As far as the Govindpur case is concerned, this matter was in the court, in the lower court, in the district court for the 3 years, and the district magistrates passed the order on the basis of the documents that the land belongs to Waqf. That's why the notice was served to the villagers. The notice was not served by Waqf board. The notice was served by the district magistrate. Then the villagers went to High Court. And the High Court... How does it has change given the a relief principle on which to the we are villagers debating? That This until- board, until- according to the law, until the last- has unlimited until powers. the Shazia last- Ilmi. Until... Shazia until Ilmi, the Professor last Pasha judgment is saying that this is a government organization, private नहीं है. वो जो फॉर्डर स्कैम हुआ था वो भी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, वो कोई प्राइवेट किसी के गोदाम से थोड़ी चुरा लिया था. So that is not a shield. What happened? But your government must walk the talk. Pranesh, you are absolutely right. Pranesh, you are right.
the fact of the matter is that it has been done so by the Waqf Board Act of 1995. The Congress government ensured that Waqf Board gets unbridled powers. They will not be answerable to any court of law, which is why the tribunal that is there also the disputes and the verdict of the tribunal cannot be questioned in any court. Do you know the maximum litigants here? We're talking about Hindus. Most of the petitioners are Muslims. You see, Rajasthan Waqf Board, at least 900 poor Muslim families have been thrown out because of the Muslim zamindars, and they're the land mafia. There's nothing Muslim about them. When did Bahadur Shah Zafar, when did he surrender to the British? 1857. But here there is no statute of limitation. Mughal rule ended 170 years ago. अनलिमिटेड इसीलिए शायद जज साहब ने कहा था, जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया, मेरा सीधा सा सवाल है भाई साहब, आप ताजमहल भी ले लो, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? प्यार से समझ नहीं आता, आप लोगों को किसी भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दोगे, ऐसा भी कर रहे हैं, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, कुछ मालूम नहीं, किसी को मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, कैसे मुमकिन है? मैं नहीं बोल रहा हूं, I'm out of time on the show. Gentlemen, thank you for joining us. Shazia Elmi, thank you for joining us. The news are with Navita Kumar on the other side. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.